प्रज्वलित कर ज्ञान और शिक्षा के इस उत्सव का औपचारिक शुभारंभ करने की कृपा करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिमय। भारतीय परंपरानुसार दीप प्रज्वलन कर हम प्रार्थना करते हैं सर्व कल्याण की, सर्व मंगल की, आरोग्य और धन संपदा की। दीप प्रज्वलन के बाद राष्ट्रीय बाल भवन के छात्र अब प्रस्तुत करेंगे ज्ञान की देवी मां सरस्वती की वंदना।
बहुत सुंदर और भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए राष्ट्रीय बाल भवन के छात्रों का अभिनंदन। और अब मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी से कि वे हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का अंगवस्त्रम और प्लांटर प्रदान कर उनका सम्मान करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। माननीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी के स्वागत के लिए अब मैं निवेदन करना चाहूँगा सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार श्री संजय कुमार जी से कृपया हमारी माननीय अतिथि महोदया का अभिनंदन करें। आपका आभार महोदय। आइए स्वागत करते हैं माननीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी का। माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए निवेदन है सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री संजय कुमार जी से। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। और अब इस आयोजन में हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय तथा अन्य गणमान्य अतिथियों के स्वागत संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय श्री संजय कुमार सर को। Honorable Vice President of India, Honorable Dr. Srimati Sudesh Dhankar ji, Honorable Minister of State Independent Charge, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and Minister of State Education, Shri Jayant Chaudhary ji, Officers of Department of School Education and Literacy, Heads of Autonomous Bodies, Officers of Lion Ministries, State officials, our colleagues from UNESCO, students, learners and volunteer teachers. Namaskar to all of you. It is an immense honor and privilege for me today to welcome Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, and Honorable Dr. Srimati Sudesh Dhankar on this special occasion of International Literacy Day 2024. I extend a warm welcome to our Honorable Minister of State, Independent Charge, Skill Development and Entrepreneurship, and Minister of State for School Education, Shri Jayant Chaudhary. Your presence adds great value to this library. We are here today not just to celebrate our achievements, but to reaffirm our commitment to building a fully literate Bharat. I am delighted to see such a diverse group of attendees in this hall today, including heads of autonomous bodies, representatives of Lion Ministries, state officials, members of UNESCO, esteemed educators, students, and most importantly, the new literates. I also extend my greetings to those joining virtually from all across the country. Today we are celebrating the International Literacy Day along with the rest of the world. The concept of International Literacy Day was established at the World Conference of Ministers of Education on eradication of illiteracy, which was held in Tehran, Iran in 1965. And since 1967, we have been celebrating International Literacy Day every year on 8th of September. It's a global recognition of literacy as a fundamental human right and a cornerstone for development, need for adult education, and lifelong learning as crucial components of literacy efforts. Sustainable development and peace and integration of literacy into national policies. This approach was meant to ensure that literacy becomes a priority
in educational reforms and development strategies. Bharat has shown performance on all four of these aspects. The literacy program is aligned with NP 2020, which aims 100% literacy. This is also as per SDG 4.6 of UNESCO, which talks about ensuring that all youth and a substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy by 2030. We have achieved 80.3% overall literacy as per PFLS 2022-23 and are now moving towards 100% literacy. The National Education Policy 2020 has devoted a full chapter on elder education and provided a pathway to attain the goal of full literacy in the country, which also aligns with Sustainable Development Goal 4.6. Accordingly, Ullas, Nav Bharat Shakshata Karyakram, was launched in the year 2022. It symbolizes a relentless pursuit of literacy for all. Ullas is targeted towards all those above 15 years who could not, for various reasons, avail the opportunity of education. It is imperative in this digital age that the persons at the last mile also have access to education. To ride on this digital wave, Ullas is being done offline as well as online. The Ullas mobile app was launched by the Honorable Education Minister on 29 July 2024 during the Akhil Bharatiya Shiksha Sabha Samaran of 3rd anniversary of AEP 2020, marking a new era in literacy journey. With the powerful slogan, Jan Jan Sakshar, we are committed to reaching to every corner of our nation. To the students of schools, higher education institutions, and teacher education institutions who are present here, I want you to know that you are the future torchbearers of this nation. The Ullas Nav Bharat Shakshata Karyakram offers you an incredible opportunity to contribute towards the nation's literacy development. You are there to enable someone to learn, read, write, and use technology, skills that can transform their lives. By volunteering, you are not just helping others, you are also shaping the future of Bharat. To our dedicated volunteer teachers, I cannot thank you enough for your unwavering commitment. Your contributions are more than just teaching. You are building the foundation of a literate society. Inspired by Kata Vibhor, you are playing an instrumental role in this mission. Your efforts have already led to the registration of over 1.56 crore learners on the last app, and 77 lakh of these learners have taken the Foundational Literacy Numeracy Assessment Test, what we call FLNAT. You are the real heroes making literacy accessible to all. To the neo-literates who have successfully completed the exam assessment, I want to congratulate you. Remember, this is just the beginning. Learning is a lifelong journey, and I encourage you to continue on this path. Whether it is digital literacy, financial literacy, or any other field, you need to keep growing. The world is changing rapidly, and lifelong learning will equip you with adapt and thrive in the ever-evolving environment. This year's theme is promoting literacy through multilingualism. It holds special significance, and the National Education Policy is very, very strong on this. India's linguistic diversity is one of our greatest assets, and by embracing multilingual education, we can make learning accessible to everyone. I invite you all to explore the exhibition of the last primers displayed here today, which have been adapted in 23 languages, and as and when you get to visit the exhibition, you will see these primers. In alignment with the National Education Policy of 2020, we have redefined literacy to include not just the ability to read, write, and compute with comprehension, but also critical life skills such as digital and financial literacy. This definition ensures that individuals are equipped to fully engage in and contribute to society.
clear benchmark for what constitutes full literacy within the Indian context has been provided. We are determined that achieving a 95% literacy rate in any state or union territory may be considered equivalent to full literacy. I am happy to share that Ladakh has become the first administrative unit to achieve this. This milestone is a shining example of what we can achieve when we can work together with passion and others. However, our journey is far from complete. As I mentioned, we are at 80.3% of literacy, and we need to make this journey complete by going to 100%. Together, we are not just enhancing literacy, we are igniting a revolution of hope, empowering individuals and shaping a bright future for India. Let us continue with unwavering determination and renewed sense of purpose to make Jan Jan Saksha Bharat, ensuring a life of education illuminates every corner of our country in every language which we may speak. I once again thank Honorable Vice President of India in elevating the cause of literacy and reassure you, sir, that we will fulfill this commitment to make Bharat fully literate by 2030. Thank you. आपका आभार सचिव महोदय। और अब आरंभिक उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे माननीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय सुदेश नायक, सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, यूनेस्को के निदेशक, सम्मानित सभा में उपस्थित शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, संस्थानों एवं राज्यों के अधिकारी, यूनेस्को के सदस्य, शिक्षक, विद्यार्थी और हमारे स्वैच्छिक शिक्षक, आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर हम एक ऐसे लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं जो न केवल व्यक्तियों के जीवन को बदलने की शक्ति रखता है, बल्कि संपूर्ण समुदायों को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह दिन केवल साक्षरता के महत्व का स्मरण नहीं करता, बल्कि हम सभी को इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है कि शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कुछ भी हो। आज की तारीख 1967 से परंपरा विश्व भर में चल रही है और अति महत्वपूर्ण है, सर्वविदित है और आज ये समझ सभी के अंदर बैठी है कि साक्षरता का एक समाज को उठाने में क्या प्रभाव, स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर करने में, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और यहाँ तक कि जीडीपी से भी साक्षरता का सीधा जुड़ाव। आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन ये माना जाता है कि अगर एक वर्ष स्कूली शिक्षा का बढ़ जाता है तो 0.37% जीडीपी का विस्तार। भारत में साक्षरता मात्र पढ़ने लिखने की क्षमता नहीं, ये वह आधार है जिस पर हम एक से अधिक समतामूलक और समृद्ध समाज का निर्माण करते हैं। इस तथ्य को मान्यता देते हुए हमने बोला नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के साथ एक यात्रा प्रारंभ की, ताकि शिक्षा हमारे विशाल देश के हर कोने तक उल्लास, जिसका अर्थ है समाज में सभी के लिए जीवन भर सीखने की समझ, एक ऐसा कार्यक्रम जो साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हमारे राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और ये स्वैच्छिक सेवा और सामुदायिक भागीदारी की भावना पैदा है, जन भागीदारी पैदा है। स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक 25 साल की इस अवधि में साक्षरता का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये वह समय है जब हम तेजी से विकसित
ये विकसित भारत की हमारी यात्रा का आधार है। NEP 2020 समावेशी भागीदारी और भारतीय भाषाओं के उपयोग पर बल देता है ताकि हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर सकें। भाषा किसी भी शिक्षार्थी की शैक्षिक यात्रा में बाधक न बने। उल्लास की पहल में बहुभाषावाद और डिजिटल नवाचार का समावेश NEP के मूल सिद्धांतों को प्रतिबंधित करता है, जो एक प्रतिबिंबित करता है, जो एक अधिक साक्षर और समावेशी भारत की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है। आज के वैश्वीकरण के इस दौर में ऐसा नहीं है कि हमें एक ही व्यक्ति और एक विचार होना है। आर्थिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, माइग्रेशन के स्तर को देखते हुए हम सब वैश्वीकरण के प्रभाव को समझते हैं। लेकिन आज के वैश्वीकरण के दौर में मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय पहचान, हमारी संप्रदाय, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, बोलचाल, व्यवहार, मान्यताएं वैश्वीकरण के दौर में ही उनको बढ़ता दिया और पूरी दुनिया में भारत इसमें नेतृत्व कर रहा है। भारत की समृद्ध भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हमने बहुभाषीय प्राइमर और शैक्षिक सामग्री विकसित की ताकि शिक्षा केवल सुलभ ही नहीं, प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए प्रासंगिक हो और सार्थक। क्षेत्रीय भाषाओं में संसाधन उपलब्ध कराकर हम प्रत्येक व्यक्ति की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान का सम्मान करते हैं, जिससे सीखना अधिक प्रभावी और रोचक हो जाता है। उल्लास केवल पारंपरिक साक्षरता तक सीमित नहीं, ये आधुनिक समय में साक्षरता के व्यापक अर्थ को अपनाता है। हमें साक्षरता की एक नई परिभाषा औपचारिक रूप से, जिससे सीखना अधिक प्रभावी और रोचक हो जाता है। उल्लास केवल पारंपरिक साक्षरता तक सीमित नहीं, ये आधुनिक समय में साक्षरता के व्यापक अर्थ को अपनाता है। हमने साक्षरता की एक नई परिभाषा औपचारिक रूप से अपनाई, जिसमें पढ़ने, लिखने और समझ के साथ गणना करने की क्षमता के साथ साथ डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और महत्वपूर्ण सोच तथा आवश्यक जीवन कौशल भी शामिल है। ये विस्तारित परिभाषा मान्यता देती है कि आधुनिक युग में साक्षर होने का अर्थ है डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से भाग लेना, वित्तीय संसाधनों को समझना, प्रबंधित करना और हमारे चारों ओर की जानकारी का विश्लेषण करने में सक्षम होना। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के इस अवसर पर हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे प्रयास एक वैश्विक मिशन का हिस्सा है। यूनेस्को के सहयोग से हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों और लक्ष्यों के साथ तालमेल बैठाते हुए एक ऐसी दुनिया का दिशा में काम कर रहे हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले। साक्षरता केवल एक राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं, ये एक वैश्विक अनिवार्यता है जिसका भविष्य पर दूरगामी प्रभाव होगा। मैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध करता हूं कि वे उल्लास पहल को पूरी तरह से अपनाएं। 2030 तक पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में अधिक प्रयास करें। ये केवल एक सरकारी प्रयास नहीं है, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हर नागरिक, हर समुदाय, हर संस्था, चाहे वो निजी हो या सरकारी सार्वजनिक हो, भारत को पूर्ण साक्षर राष्ट्र बनाने में हम सबको अपनी भूमिका निभानी होगी। इस डिजिटल युग में साक्षरता वह कुंजी है जो अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोलती है। ये व्यक्तियों को सशक्त करती है, समुदायों को मजबूत करती है और राष्ट्र प्रगति को गति प्रदान करती है। जब हम सभी के लिए साक्षरता के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो हम अपने राष्ट्र के लिए एक उज्जवल और अधिक न्याय संगत भविष्य में निवेश कर रहे होते हैं। आइए हम सभी इस अवसर पर साक्षरता के प्रकाश को दूर दूर तक फैलाने के लिए प्रयास करें,
प्रण लें। आइए हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जहां प्रत्येक नागरिक सीखने, बढ़ने और हमारी सामूहिक समृद्धि में योगदान करने के लिए सामर्थ हो। दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ हम 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। एक पूर्ण डिजिटल साक्षर और जन जन साक्षर भारत का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके आरंभिक उद्बोधन के लिए। और अब वो बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है जब हमें हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के आशीर्वचन प्राप्त होंगे। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय कृपया हमें अनुग्रहित करें अपने आशीर्वचनों से। सभी को नमस्कार, प्रणाम। जब मैंने प्रवेश किया और मेरी नज़र उधर पड़ी माताओं और बहनों पर, मैं विभूत हो गया कि आज की उपस्थिति रिप्रेजेंटेटिव ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, इंडिपेंडेंट चार्ज, स्किल डेवलपमेंट, श्री जयंत चौधरी बहुत बड़ी विरासत के धनी हैं। चौधरी चरण सिंह जी को पहचाना जाता है गांव, गरीब, किसान के हित के लिए, और उनकी पहचान राजनीति में थी ईमानदारी के वो प्रतीक थे। मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं उनके एक बार दर्शन कर पाया। राज्यसभा के सभापति की हैसियत से मैंने जयंत को सांसद के रूप में देखा है, और आज का भाषण क्या कहता है, मेरे लिए कुछ कहने को वास्तव में बचा नहीं है। बहुत ही सलीके से हर पहलू पर एकाग्रता से इतनी बड़ी बात कह गए हैं। सभी को आह्वान किया है। मैं समझता हूं कि जो भाषण दिया गया है, जो हमसे उम्मीद की गई है, हर राज्य सरकार, हर केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी इसको ध्यान से देखेगी और सार्थक कदम उठाएगी। Congratulations, Jayant, for rendering a great address. Shri Sanjay Kumar, Secretary Department of School Education and Literacy, विकसित भारत में इनके विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। He is responsible for strengthening the foundations. इमारत बनने में जोर नहीं आता है, नींव में जोर आता है। बहुत चैलेंजिंग काम है दोनों। In my brief interaction, I came to get a feel of his spinal strength. But when I listened to him, every word was carefully thought out. Look at his far-sightedness. He congratulated UNESCO for doing such a game-changing work for larger humanity. He revealed all the aspects which are being taken and how we have to accomplish them. I have no doubt the department will create
the final of it. When we were independent as a nation, our literacy rate was 12%. And now we have only 20% to make up. That 20% to reach that saturation is not easy. But then challenging times get the best out of you. अंदाजा लगाइए, जिस देश में कभी सोचा था कि हर घर बिजली होगी, हो गई? कभी नहीं सोचा था। अंदाजा लगाते थे इतने गांव इलेक्ट्रीफाई हो गए, इस पर फोकस नहीं गया कि कितने घर इलेक्ट्रीफाई हो गए। पर गत दशक के अंदर फोकस इज एवरी हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड, और अब तो और भी बड़ी छलांग लग गई है। एवरी हाउस होल्ड विल बी सेल्फ पावर्ड बाय सोलर मैकेनिज्म। ये हमने अचीव किया। दिल दहकता था, कल्पना नहीं कर सकते थे। 34 साल पहले संसद सदस्य था कि इतने विशाल देश में हर घर में टॉयलेट। हमने बचपन बिताया है, गांव में एक टॉयलेट नहीं होता था। आज कितना बड़ा कवरेज हो गया है। डिजिटल कनेक्टिविटी। When I got a visitor from abroad, while I was governor in state of West Bengal, he asked me a pointed question. When you go to your village governor, how do you connect with the system? I said, then it was 4G. I said, 4G connectivity in my village is better than in Kolkata or Delhi. क्योंकि हर गांव में कनेक्टिविटी नहीं आई है। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल सिर्फ मोबाइल नहीं है, उसका उपयोग होता है। डायरेक्ट ट्रांसफर्स होते हैं, उसका उपयोग वो सर्विस डिलीवरी में लेता है। उसने वो लंबी लाइनें खत्म कर दी जो रेलवे के अंदर टिकट की लगती थी, प्लेटफॉर्म के लिए लगती थी, पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए लगती थी, बिजली के बिल के लिए लगती थी, पानी के बिल के लिए लगती थी। सब कुछ वो करने लग गया। हमने इतना बड़ा कर दिया। सरकार ने क्या किया है? रोड कनेक्टिविटी। पड़ता था न बिजली थी, टेलीफोन की तो बात ही नहीं थी, न रोड थी, और स्कूल भी नहीं था, 5वीं तक का था। जब इतना क्रांतिकारी बदलाव आ गया तो फिर लेट अस रिजॉल्व टुडे कि लिटरेसी के मामले में भी कम से कम समय में ये करते। मेरी दृढ़ मान्यता है, आई सुप्रीमली बिलीव इन इट, क्योंकि मैंने ये झटका खाया है। 1989 वो जमाना था जब मैं लोकसभा का सदस्य था और हर सांसद को 50 गैस कनेक्शन मिलते थे। आज तो करोड़ों में दिए जा रहे हैं, पर 50 एक सांसद की बहुत बड़ी ताकत थी जन जी। तो मेरे इलाके में गया और मैंने एक वृद्ध माता, दादी की उम्र की थी वो, मैंने कहा दादी तू चूल्हे के मां फूंकनी मत मार, मैं तेने गैस कनेक्शन दूंगा। और मैंने खुद ही अंदाजा लगा लिया कि उनको दस्तखत करने नहीं आते हैं। तो मैंने कहा तू कुछ मत कर, एक कागज पर अंगूठो लगा दे। बोली बेटा अंगूठो क्यों लगाऊं? अंगूठो दिखाऊंगी, मैं दस्तखत करूंगी। चमक देखिए उसकी, ये खुद का अनुभव है। मेरे कहने का अर्थ है, when we make someone literate,
we liberate him or her. We help that person discover himself or herself. We make him or her feel dignity. We cut down dependence. We generate independence and interdependence. जब ये इतना महत्वपूर्ण काम है, तो जब एक बहुत बड़ा संकेत दिया है, मां के नाम एक पेड़, मैंने इसकी अनुपालना की है। अब तक करीब 50 से ज्यादा पेड़ लगा चुका हूं, और अक्सर मेरी धर्मपत्नी को मैं कहता हूं कि देख, मैं एक साथ 2 काम कर रहा हूं, मेरी मां के नाम और तेरी सास के नाम पेड़ लगा रहा हूं। क्यों नहीं आज हम संकल्प लें कि हम ऐसा प्रयास करेंगे। वी विल मेक एटलीस्ट 1 लिटरेट। यह संकल्प यदि अगर हम आज लेते हैं, तो हम निश्चित रूप से जो मुहिम आज जयंत चौधरी जी और संजय ने संकल्प के रूप में ली है, हम इनकी मदद कर पाए। आज ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी का बहुत बड़ा महत्व है भारतीय संस्कृति में। ऋषि परंपरा का मतलब है कोई भी शासन में हो, कोई भी शासन व्यवस्था हो, सही रास्ता दिखाने का काम ऋषि करते हैं। हमारी हजारों साल की विरासत का ये आधार है। आज के पावन दिन हमारी संस्कृति को नमन करते हुए हमें आज दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम एक को जरूर लिटरेट करेंगे और 6 महीने में करेंगे, ताकि साल में 2 कर पाए। थीम तो बहुत ही बढ़िया है, मल्टीलिंगुअलिज्म। दुनिया में भारत के मुकाबले कोई देश नहीं है। We are a unique nation when it comes to richness of language. We have several languages. As Chairman Rajya Sabha, I afford opportunity to members to speak in 22 languages. And they avail this opportunity. और जब मैं उनको अपनी भाषा में भाषण देते हुए सुनता हूं, तो ट्रांसलेशन तो सुनता ही, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज ही मुझे बता देती है कि वो क्या बोल रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इट। दे आर एट देयर बेस्ट। और इसीलिए इस देश में 3 दशक के बाद एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम आया, एंड वी हैड अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एंड दैट laid great emphasis on mother tongue, Matrabhasha. From this platform, I will appeal to states that have not adopted national education policy to rethink, revisit, because this national education policy is a game changer. This national education policy allows our youth to fully exploit their talent and energy. And it gives importance to all languages. मातृभाषा की तो बात ही अलग है, क्योंकि वो भाषा है जिसमें हम सपने लेते हैं, और हमारा जीवन कहाँ है, सपनों को साकार करने में लगा रहता है। The good thing for younger people today is there is an ecosystem in place that allows you to unleash your energy, exploit your talent and potential, realize your aspirations and dreams.
मातृभाषा में जब सपना लोगे तो इस इकोसिस्टम का फायदा उठा पाओ। आज के दिन दुनिया में भारत की एक नई पहचान है। वो एक ऐसी पहचान है जिसकी मेरे पीढ़ी ने कभी कल्पना नहीं की थी। It was beyond my dreams and contemplation that I will see Bharat having that position in the world. क्योंकि हम जब संसद सदस्य थे पहली बार तो हमारी इकोनॉमी की साइज लंदन शहर से छोटी थी। आज उनके देश से काफी बड़ी है, दुनिया की 5वीं महाशक्ति। At that point of time, when as a minister I went to Srinagar, 1990, I could hardly see anyone on the street. And now, last year, more than 2 crore people visited as tourists. That's a big change. इतना बड़ा बदलाव आया है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत 1990 के अंदर to save fiscal credibility, gold was shipped in a plane to 2 banks of Switzerland, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज 1 और 2 बिलियन के बीच में था। आज 680 बिलियन से ऊपर है। ये ऐसे भारत में जो आज मोर की तरह है, मोर जब नाचता हम प्रसन्नचित होते हैं, पर मोर जब अपने पांव की तरफ देखता है तो मोर के थोड़े आंसू आ जाते हैं। ये लिटरेसी में जो थोड़ी कमी है, ये मोर के पांव, हमें इसको दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। आज पूरे देश में एक महायात्रा चल रही है, मैराथन मार्च फॉर डेवलप्ड भारत 2047। Everyone is a stakeholder in that march. और इस मार्च में ये जो बड़ा हवन हो रहा है, इस हवन में हर कोई अपनी आहुति दे रहा है। एक आहुति हमारी ये भी लगनी चाहिए कि हमने हर 6 महीने एक व्यक्ति को साक्षर किया, और ये आहुति will raise our happiness level, our satisfaction level. कहते हैं कि बहुत चीजें हैं, we have to be possessed about them, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में we need not be possessive because they are not exclusive to us. Sharing makes them larger. मैं एक श्लोक की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। न चोर हार्यम, समझ गए? चोर भी चोरी नहीं कर सकता। न चोर हार्यम, न राज हार्यम, राज भी नहीं ले सकता। न भ्राते भांजम, वो भी नहीं ले सकते। न भारकारी, कोई नहीं ले सकता। वेव कृत्य वरदति, खर्च करोगे बढ़ेगी। एवं नित्य विद्यमान सर्वधनम दानम, कहने का मतलब शिक्षा वो चीज है जो न तो चोर आपसे ले जा सकता है, न शासन आपसे छीन सकता है, न भाई भतीजे रिश्तेदार दोस्त छीन सकते हैं। इसमें कोई कटौती नहीं कर सकता। ये बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी जितनी आप इसको शेयर करते जाओ। इसमें बहुत बड़ा ज्ञान है। लिटरेसी यदि आप एज अ मिशन लोगे, पैशन मोड में रहोगे, तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि जो हम आज सोच रहे हैं कि हमारा देश प्राचीन समय में जो हमारी स्थिति थी वो प्राप्त कर ले।
दुनिया में थोड़ी नजर फैलाइए, नालंदा, तक्षशिला ऐसी संस्थाएं कहाँ दिखती थी पहले। हमें उसी रास्ते पर, देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कितना प्रयास कर लो कुछ नहीं कर पाएगा। The rise of Bharat is unstoppable. The rise is incremental. The rise is continual. The rise is assured. There are some elements, misguided souls, वो भारतीयता को समझते नहीं है जो हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद को समझ नहीं पाते। They seek to occupy public space only to generate sensation and destabilization. ऐसी ताकतों को रिबफ करना, न्यूट्रलाइज करना हमारा राष्ट्रीय धर्म है। We cannot allow in this nation anti-national narratives to flourish and blossom, thereby tarnish, taint, and demean our institutions and our progress. मेरी बात को ध्यान से देखिए, अंदाजा लगाइए, जल, थल, आकाश और अंतरिक्ष हमारी प्रगति से कोई नहीं छिपा है। Our accomplishments on the sea blue economy are enormous. विक्रांत पुराना था, नाम पुराना, विक्रांत अब नया है, देश में निर्मित हुआ है। That was launched. Coming to land, क्या-क्या डेवलपमेंट नहीं। When we speak about sky, our own helicopters, our Tejas planes, and Antriksh, we immediately click with Chandrayaan 3. The only country in the world to have landed its craft on the south pole of moon, और हमने तो चांद के ऊपर तिरंगा और शक्ति पॉइंट तय कर दिया। So let me, friends, conclude by making an appeal. Making someone literate is a service to humanity, and UNESCO is doing a great job. Congratulations to UNESCO, but we must be flag bearers. Making literate is helping someone discover himself or herself. And mind you, when you help a person self-discover, you give him or her the ultimate potency. It enables a person to help himself or herself. आपकी मदद नहीं चाहिए कि बस इतनी मदद कर दो, फिर वो आपकी मदद करता रहेगा। It is supreme facet of hand holding. कोविड के जमाने में भारत ने कितना कीर्तिमान हासिल किया, देश के लोगों का भी ध्यान दिया और 100 देशों का ध्यान भी दिया। We had कोवैक्सीन मैत्री, मतलब वासुदेव कुटुंबकम को की भावना को हमने जमीनी हकीकत में बदला। हमारा G20 का मोटो ऐसे नहीं था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और इसीलिए खुद कोविड को सहन करते हुए 100 देशों को कोविड देना, कोवैक्सीन देना हमारी संस्कृति की एक झलक है। जो सुख, जो खुशी आप लिटरेट बनाकर एक आदमी को देंगे, एक महिला को देंगे, एक बच्चे को देंगे, एक बच्चे को देंगे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपको क्या खुशी मिलेगी। It is going to be contagious in positive form. It will be the greatest affirmative action you can take in human resource development. Time for us to be in mission mode with commitment and passion to ensure 100% literacy at the earliest. But I'm sure this is achievable sooner than we think. Let each one make one literate. This will be, my friends, his final contribution for Viksit Bharat. I am grateful for your time. Thank you.
माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, आपके उद्बोधन एवं आशीर्वचनों के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और अब राष्ट्रगान होगा। आप सभी कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कृपया अपने अपने स्थान पर बने रहें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के प्रस्थान तक